Yes. You able to see this? I'm hoping my screen is visible to you. Yes, Ankita, it is visible. Yes, Ankita. Yes. So as if you can see that fundamentals takes 5 days. I will definitely try to complete this fundamental in 5 days. Okay. Main point is that 5 days from me, but the practice stays from you. Okay. So you also try to complete this fundamentals in 5 days. Okay. So just these 45 days will be devoted by you guys. Okay. Okay, fine. App builder is of 11 days, then 1 day for the project, then developer 21 days. Developer project would be of 2 days. Then lightning aura development is 5 days. Okay, so it is of 45 days module. After 45 days, you will be in for the interviews. Okay, this is the content. If you talk about the content, so in fundamental contains SQL. Okay, the data model, select statement, DDL, DML, okay, single row, multi row functions, subqueries, joins, PLSQL triggers, then HTML, CSS, and JavaScript. Okay, these 5 days will be segregated by this path. Then the feedback and the fundamental exam. Yes, you will be definitely faced by the exam after every module. Okay, fundamental exam of 45 questions, 1 hour. You have to crack the exam by 70%. Otherwise, you have to reappear to the exam. Okay. Then admin module containing the introduction of Salesforce, CRM, then basics and organization, configurations, and many more things. Gradually, we will know everything. Then see project evaluation, then exam. Okay. Then your component development or a component development part where you will be having the introduction about lightning components and applications. Okay, surfacing the lightning component, navigations, layouts, tab sets, so many things are there. Okay, so this has to be complete in 45 days for sure. And obviously we should not run, we should learn. Okay, we should not run, we should learn. So इसी perspective पे चलेंगे तो definitely we will understand the things much more in a better way. Okay, little orientation part is there. Let me cover that also. Before that, let me connect my charger also. Yes, it is connected. So we represents AlmaMate Infotech, which actually aims to help client drive digital transformation in their organizations and make their workforce future ready by providing training in future skills that are uh, Salesforce, obviously. How we help our client? Providing the fresh graduates, okay, trained in future skills, that is Salesforce. It's not about only fresh graduate, but it's about experienced professionals and also workforce development with training in future skills. Workforce development is something like when company approaches us, you should for the learning of bulk employees.
Okay, this is for the bulk. So many companies have approached us to switch their technology of the employees to Salesforce. So we provide the training to 400 or 300 employees at a time. When Ankita, uh, sorry to interrupt you. I have a question. Actually, pardon, I want to. pardon. Um, I want to ask something. Okay, Actually, after placement, we will be get a job on apprentice basis or payroll basis. that would be discussed by Kavya. Okay, Okay. sure, sure. Yes. So this is the full day module, as if I already told you about it. Ankita, I think you are speaking on mute. Ankita, your voice is not coming. Can you hear me? Hello. Yes, Ankita. Is it clear? Yeah. Cool. So we were at this point. Otherwise, the candidate need to repeat the course in the next upcoming batch. If he or she is not able to clear the assessment, reassessment even, so it has she or he has to reappear for the full course, that full module. Okay. That will be chargeable or No, 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 no. It is free of cost. It is free okay. of cost. And if candidates wants to continue the training without passing the toll gate threshold, then he or she needs to sign a placement denial form. Okay. Means if you are like, as if you are fed up from giving the reassessments and all, so you can continue your training without passing that toll gate. So you have to sign that placement denial form that you don't want the placement. Okay, let me cover the training part. Okay. As if I'm not expecting this from you. So let's not think about this point. So certificate and placement opportunities on clearing the final toll gate. Obviously, certificates and the placement opportunities आपको after the toll gate clearance ही मिलेगा. That is final toll gate. That is your lightning aura component exam. Okay. If I talk about the training process, so process will be going on like classroom training होएगा, then task and assignments, then trailheads will be there, assessment, project, mock. Okay. Instructor, that is me, led training, theory plus hands on practices in the classroom itself. Candidate participation required. Preferred communication language would be English or Hindi, as if you demand. Then task and assignment, daily classroom task would be there. Daily assignments for home will be there. Class entry is based on the completion of previous assignment. Yes. Okay. I'll be going to ask about the assignments which will be provided by me to you. Okay. Then I'll be, as if I will not
say that I will remove you from the class, but it is preferable कि आप अपना assignment करके आए. Then trailheads, when we will start the admin module, then we will be having trailheads also. Daily one or two trailhead topic will be given to you, which is specifically dedicatedly to the dedicatedly topic which is covered in the class itself. Okay. Points and badges earned to be shared with the trainer. Okay, you have to share the points and the badges which you have earned in the trailhead. Have you ever heard about trailhead? Anyone? No. No, Hussein. Yes. Yes, I heard. No, man. No, no, no. No. Okay. Have you earned any badges who have heard about trailhead? They have earned any badges? Yes. How many? Mm, around 8, 9. Okay. Yeah, assessment project mock. You won't believe I have some students, those who have started the Alma Made Salesforce with 25 badges. Pretty much impressive. Okay. Assessment project mock. So four module wise assessments. Okay. Four modules हैं. उनके according assessments होंगे. Two projects will be there. Mock interviews will be there. What about mock interviews? It's something like one-to-one FaceTime, and that will be kind of a mock interview itself. Okay. Internal mock interviews होते हैं in the Alma Wait itself. Maybe I or some other will take your interview. Okay. Okay. According to the module itself. Qualify, then you will be certified. Okay. Evaluation कैसे होगा? Evaluation of daily lab task and assignments score 80%. Minimum trailhead badges at the end. App builder 30 and developer 15. Okay. That is, at the end of the course you must have at least 45 badges with you. Okay. Badges, it's kind of in trailhead now. In trailhead, you will log in yourself with the trailhead, and there you will be having task on each and every topic. Okay. It's not mandatory the topic which I have covered will be there in the trailhead, say as it is will be not there. Maybe some different things you will learn in the trailheads. Okay. So those tasks will give you badges, and if you mention those badges in your CV, so it is really impressive for the interview time as well. Okay. Right now, guys, always remember that right now you are here only to crack the interview. The main learning, actually the main learning will be start from when you get into the company. Always remember, as And if I Ankita, already. I just, as per my thought, company also provide the training, right? Yes, definitely. Yep. Okay. डेफिनेटली. बट बिल्कुल स्क्रैच को नहीं करवाती ना फिर वो भी ट्रेनिंग, है ना? Right, right, right. यू शुड हैव प्रायर नॉलेज, यू शुड बी एबल टू आंसर. ओके. और अगर किसी ने बोला मेरे को ट्रेल हेड में आई हैव 80 बैजेस, तो कंपनी गेट टू नो ओके 80 बैजेस इसने हवा में नहीं लिए होंगे ना, इसने टास्क परफॉर्म करे होंगे, और टास्क परफॉर्म करने का अगर 80 बैजेस है तो 40% तो आया ही होगा दिमाग में. आई गेटिंग माई पॉइंट? Right, So right. this is the way interviewer will impress. Okay, 80 badges. Nice. I getting my point. उससे ना interest भी पता चलता है that how much a student having the interest in the sales course. Okay. Okay. So toll gates, obviously all of 70%, 70%. Project evaluation will be of 60%. Mock evaluation will be at 60%. Okay. if I talk about little highlights, so course manual होगा आपके पास में, assessments होंगे, quiz, PPTs. जहाँ जहाँ PPTs होंगी वहाँ वहाँ definitely I'll provide you the PPTs as well. Video tutorials होंगे आपके पास में. ठीक है. Recording sessions होंगे आपके, जो आप session में study करेंगे मेरे साथ, वो सब recorded होगा. ठीक है. And links to trailhead topics. I'll be going to provide the links to the trailhead topics. Okay.
It's something like candidate regularity has to be there, punctuality and sincerity. Okay, जितना sincerely आप उसको करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. Okay, candidate will be given only 10 to 15 minutes grace period after the class start time, that is 9:30. So we will be going to wait maximum till 9:45. Then we will start the class. Okay. किसने? Attendance अरे required for प्रभु। availing, mute yourself. Yes, attendance required for availing placement services 90%. Okay. And that should be like attendance भी ऐसे है कि you have to inform before your leaving, before your leave. Okay. If it is unplanned leave, then it will be counted as the uh, mm, 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 it will be counted as the leave, proper leave. Okay. अगर आपने प्लान करके लिया है, मीन्स मुझे इन्फॉर्म करके लिया है, देन it would be fine. And each and every leave would be in the group, either in the group, okay, or in the mail, okay, by having the CC of Kavya. Okay, thank you. Little formalities, guys, huh? Let's start the actual phase. Okay, SQL. What do you understand by SQL? How much you have know about SQL? I just know the full form of SQL. Very good. Structured query language. Yes. Right. What about others? नो बेटा। Don't tell me कि इसके अलावा और कुछ नहीं आता. Shreya? Yes, I know about this. Okay. I also know about this. Okay. Chalo, let's start. But before SQL, let's have a basic knowledge about the databases and all. Okay. Okay. So, what is the meaning of database? The database is something which is used to store the information, right? अच्छा, information store करने के लिए what you have the different tools? Do you have any different tools? Do you know the different tools name? Raise hand if anybody knows that how we are storing the information. No idea about databases? Manish? Yes, Ankita. Yes. Any idea about databases? Yes. Basically, it is used to store the information from where we can fetch the information, and we can do the data manipulation. Okay. Name some tools. Mm, like through data loader, we can upload the data. Okay. But that's the tool to up, upload and insert the data, Yeah, right? correct. Yeah. It is not a database, Mm, right? You able to understand what is the difference between data loader and the database, right? yeah. Chalo, let me tell you. Let me tell you about this. So database is something which is used to store the data. Okay. Like if I talk about Oracle. Have you heard about Oracle? Yes. Yeah. Yeah. MySQL. Have you heard about this? Hmm? SQL Server. Guys, have you heard about these tools? Yes.
right? So these are the Yes. tools. Okay, these are the tools. That is database. These are the databases. These databases uses SQL. Okay, above databases uses the SQL to communicate with data. Mhm. Above databases use SQL to communicate. Hmm. Okay, uses SQL to communicate with. Okay, as if we are communicating. Okay, so we should have some language through which we can communicate with each others. Okay, so similarly, SQL is the language. Okay, structured query language to communicate with the different databases. Okay, is this clear? Yes. Okay, so there we have one more term, RDBMS. RDBMS. What that mean? The relational database management system. Yes, relational database management system. Okay, where we come across with the relations between the two different tables. Okay, then we will talk about relationals. Okay, see, database is something which is used to store the data. देखो, notepad is also there, Excel is also there, right? There we also store the data, information. Database is anything which is used to store the information. Okay, even in Play Store also you will having some kind of apps nowadays. You will having some apps. Okay, there you also store some data, like I don't remember that name, but there are so many apps, like manage your groceries information, right? So these kind of information जहाँ पे भी store हो रही है, हाँ, this is all about database. Okay, but where there is no relation between the data, so it is normal data. Okay, but if there is relationship between the two tables, two different records, okay, then it will be a relational data. Okay, and when we are talking about to manage that data, so it is about RDBMS, that is the management system, how we are managing this particular data. Okay, in Salesforce we will be going to do SOCL. Okay, okay, that is query language. We will be doing query language. Okay, little different from SQL. Okay, as if SQL is having DML, DDL. Okay, so many different types, but Salesforce SOCL only have select. Okay, gradually we will know about this also. Okay, so I'm hoping if anybody asks you what is database, so you would be able to answer. That is, it is used to store the data. Okay, these are the what? These are the tools. Okay, these are the tools to store the data. In short, they are the databases only. Okay, a project having two components, front end and back end. Okay, front end is your code part and back end is your database. Okay, हमने कहा आपको the student used to say I use SQL as the backend. No, SQL is the language which is used to communicate with the database. Okay, Oracle, MySQL, SQL Server is the database. Okay, which is used to store the information, as if Gmail में आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होगा. तभी तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू लॉग इन विद द
Gmail, so it is used, the user id and password used to check. तो वो कहाँ से चेक होता होगा, कहाँ से वेरीफाई करता होगा? इट इज फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, सम इंफॉर्मेशन इज देयर. आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड से रिलेटेड मेल्स विल बी देयर. ओके, जीमेल जो यूआई है उसका, दैट इज यूजर इंटरफेस है, वो सबके लिए सेम है, राइट? ओके, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज मेल्स विल बी डिफरेंट. हाउ? According to the user interface, according to the username and password. Are you getting this point? Okay, so where these mails, क्या वो cloud पे पड़ा है हमेशा? No. There is a database also, जिसमें वो सारी information क्या होंगी, store हुई हुई होंगी. Are you getting my point? Huh? Why we use database? Now I'm hoping that you are able to understand why we use database. Right? Right? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. So SQL is the language जिसको हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. ओके, इफ आई टॉक अबाउट RDBMS, it is totally different. Okay, this is the database, and one term is DBMS. Okay, that is database management system. Okay, if I talk about DBMS, so it is database management system, where we are only talking about the database. नोटपैड पे भी तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. छोड़ो, नोटपैड पे भी नहीं होती. इवन आज की डेट में भी कई लोग हैं जो हार्ड कॉपी यूज करते हैं. आज की डेट में भी आपकी वो अपने रजिस्टर्स बनाते हैं, रजिस्टर पे नोट डाउन करते हैं अपने डेटा को, राइट? तो दिस इज नथिंग बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. गवर्नमेंट के अंदर अब काफी कुछ डिजिटल हो चुका है, लेकिन आज से आप कह सकते हो 5 years पहले तक भी दे मेंटेन रजिस्टर्स. फाइल्स होते थे उनके पास में बकायदा. there you there they store the database, data. Okay, so this is called database management system. But when we talk about relations, okay, some parent child kind of relationships between the two different tables. Why? What is table? Gradually we will know. Okay, but what is table exactly? What is table? As if let's say student table and the college table. Okay, college table contains the college information, course information, whereas student table is holding the student information. Student is belongs to that college, so relation ban gaya na, right? You are not, you are not in the panic situation कि भाई ये student किस college का है. You have, as if you are the, you are sharing the relationship between these two tables. You can be able to get to know what is the college name of the particular student. So in short, this is called relation. Okay, okay. So if I talk about more about SQL, so we have different types of SQL, that is DQL, DML, DDL, DCL, and TC. Okay, that is data query language. DML is data manipulation language. DDL is data definition language. DCL, data control language. And TC is transactional transaction control. Okay, if I talk about DQL, so that is data query language, holds only select. Okay? Select the statements. Whereas if I talk about DML, so we have insert, update, and delete. Okay, if I talk about DDL, that is data definition language, so there we have create, drop, alter, rename,
Okay, which is happening with the table itself. Data definition. Okay, suppose student की जगह पे आपको candidate का नाम रखना है, मतलब student table name has to be changed from student to candidate. Okay, so this is definition, data definition language. Okay, then DCL holds grant and revoke. Okay, ट्रांजेक्शन कंट्रोल के अंदर आता है हमारे पास में सेव पॉइंट, रोल बैक and commit. Okay, gradually we will know each and every statement. Okay, okay, कि ये होती क्या है, कैसे काम करती है, everything. Okay, here we will be using Oracle 11G, the tool. Okay, the tool, as if I already told you, it's a database. स्टोर करता भी है और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म भी है जिसके थ्रू वी कैन not provide but we use to communicate with the database, so we use SQL there. Okay, so we have the syntax like con is used to connection, to create the connection. This as sys dba. Okay, password is blank, so we just need to enter. So now connected. Okay, Oracle has provided us the HR. Okay. Mhm. Run SQL command consists as sys dba. Okay, Oracle has provided us HR database, the username you can say HR username, for the learning purpose. तो हम वही यूज करेंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल्स होंगी, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें हम वर्क करेंगे और डेफिनेटली गेट टू नो डिफरेंट कमांड्स जो अभी लिखे थे पीछे. ठीक है. फॉर दैट HR इनिशियली ना लॉक होता है. ओके, उसे हमें अनलॉक करना पड़ता है. तो वी हैव टू यूज ऑल्टर यूजर HR identified by let's say password is HR123. Okay, account unlock. This is the statement. Semicolon is must. Okay, now I have to connect with HR. Con HR password is HR123. अभी भी रखा है ना. Now it is connected. Is it clear? This step is clear to you? See, to connect initially, so the command is con space sys as sys dba. Okay, then you need to pass the password. Okay, then it is going to ask the password, so it is blank. ऐसे करेंगे वो connect हो जाएगा. After the connection you have to alter the HR user, then only you would be able to use it. Okay, what is the command? Yes, alter user HR identified by the password HR123. आप कुछ भी रख सकते हैं according to you. Count unlock. Okay, semicolon. Okay, semicolon is used to end up a line. Okay, semicolon is used to end up a line. Okay, and then you need to write con HR slash HR123. See, slash means पासवर्ड के लिए आपने हाथ क्या दे दिया उसको. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप HR लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो, फिर वो पासवर्ड आपसे पूछेगा तो यू कैन प्रोवाइड दी HR123 एज वेल. इज दिस क्लियर? These steps is clear to you? Yes. Yes, Sanjana. Deepak? Yes, ma'am. Yes, Sanjana. Yes. Good. So let's see कि what's there in the HR. इसका font थोड़ा सा बड़ा करते हैं.
Font. Better? Hmm? Yes. Yes, Yep. Manish. Hmm. ठीक है. See, we have a command select star from cat. It is giving me all the tables, as if I already told you. Hmm? कि for the learning purpose, Oracle has provided me some tables. Okay. So using this cat statement, जो भी internal होगा उस particular user में वो आपको मिल जाएगा. Okay. See, departments, employees, these some tables which we will be going to use. Jobs, locations. Okay. What else? Student tab 1, tab 2. Okay. Project. ये तो custom है. Means I have created them. Okay, fine. Hmm? So if I use employees, this employees table. Okay. Select this star from employees. Okay. Semicolon has to be there. So we have 106 rows in this. Okay. It is actually the data. See, employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission, PCT, manager ID, department ID. These are the column name. Okay. These are the column name. And this is the data. 206, William, last name, Gids, widgets. Okay. These are the data. Little confusing, Hana? How to read it. Hey, please, if you are not What, asking something, so mute yourself. Yes, Manish? what is the difference between view, sequence, and table? See, you must be talking about this, Correct. Yeah, right? table type. It is not editable. Okay, it is just a part of the table. Means record. Okay, we can create the views of a table. Okay, as if a table contains 4 columns and 10 records, and I want only 2 columns. Okay, and 5 rows. Means 5 records. So in that case, we can create the view of that table. Okay, so every time I need not to um query the where clause wala statement, I can create the view so that the little part of the table will be stored as a view. Clear? Okay. Okay, and sequence is also one of the component to show the information of the table itself. Okay, you can create the indexes. Okay, column numbers, everything. Okay, we just need to know about the tables. Here we just need to know about the tables. Don't worry about the views and sequences, indexes. Okay, Yeah, fine. fine. Okay, what I have done, select star something. क्या था ये? Select star from employees. This is the syntax. Okay, let me write this for you. What I have done, select this star from cat. Okay, this will show you the mm, internal all tables, views and all. Okay, अगर कोई इंडेक्स होता तो वो भी दिखता इंडेक्स. Sequences. Okay, of the particular user. Okay, now I have written select this star from employee. Employees is already table which is there in the HR user. Okay, it is there in HR user. Okay, Oracle has provided us HR user for the learning purpose. Okay,
हम सेस में भी पढ़ सकते थे, पर वो उसमें ज्यादा टेबल्स हैं, ठीक है ना, कट आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है उसके अंदर, राइट। अदरवाइज हम सेस में भी पढ़ सकते हैं, सेस एस सिस डीबीए किया था ना स्टार्टिंग में, कनेक्शन क्रिएट किया था, Yes. ओके, उसमें भी कर सकते हैं लर्निंग, ओके। So what exactly the syntax? If I talk about the syntax, okay, so select, okay, space, specify the column name, okay, specify the column name from select is also a statement, select, specify the column name from table name, then semicolon. This is the syntax. It's something like specify की जगह ना ऐसे लिख देते हैं, column name 1 comma column name 2 dot 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 comma dot 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 comma column name n, where n denotes जो भी चाहिए, ठीक है ना, जो भी कॉलम चाहिए वो। ऐसे कैसे काम करेगा ये देखो, इंस्टेड ऑफ स्टार, स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, आई वांट ओनली फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, it is showing me only first name from the employees table, I getting, select first name from employee, I want last name also, ठीक है, मुझे नहीं पता और कॉलम्स कौन से हैं, तो what I can do, I can write DESC, that is describe employees, okay. So it is showing me the information about the employees, means what are the columns, okay, and their data types, okay, देखो employee ID number 6 means 6 digits आ सकते हैं उसमें, first name varchar 2 is the data type extendable होता है, char is also a data type, char, okay, char में अगर आपने 20 लिखा, जैसे ये साइज है, ओके, कैर में 20 लिखा तो इट कैन नॉट टेक 21, 24 कैरेक्टर्स नहीं ले सकता, लेकिन वैर के 2 में आपने मिनिमम साइज है 20 बट इट इज एक्सटेंडेबल, अगर आपने 21 भी दिया है तो वो एक्सटेंड कर जाएगा, ओके, यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, हाँ, here in the parenthesis we are providing the size, okay, then last name is also varchar 2, email varchar 2, फोन नंबर भी varchar लिया, देखो इंटरनल है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, देन देखो हायर डेट इज ऑफ डेट टाइप, ओके, ये क्या है नल, ये ना इसके वो है, आप आगे चल के इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे, Means these are the mandatory fields, right? यस बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज समथिंग मैंडेटरी फील्ड्स नॉट नल, इसको आप इफ यू आर एंटरिंग द डेटा ना, तो ये फील्ड्स की वैल्यूज तो आपको देनी ही पड़ेंगी, ओके, इट कैन नॉट बी नल, ओके। constraints, have you ever heard constraints, hmm? So null, not null is the part of constraint, okay, we will learn it also, hmm? Manager ID, department ID, job ID, okay, देखो ये क्या है, नंबर 8, 2 मीन्स 8 digits, 2 मीन्स डेसिमल, ओके, 2 तक, 2 decimals up to 2 decimal it could take, okay, clear। अच्छा एक चीज देखो और, हेयर फर्स्ट नेम इज ऑल कैपिटल, पर मैंने तो स्मॉल लिखा था, सेलेक्ट फर्स्ट नेम तो स्मॉल था, इन शॉर्ट एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, रूल्स ऑफ एसक्यूएल, नॉट केस सेंसिटिव, इनिशियली स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं इस फीचर को, क्योंकि एटलीस्ट केस सेंसिटिव वाली एरर नहीं आ रही होती है कि उसमें अगर फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल में है तो मुझे वही देखना पड़ेगा, नो, ठीक है, बट व्हेन यू कम्स टू द कोडिंग पार्ट, इवन एपेक्स भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, बट जब आप वेब कंपोनेंट में आओगे ना, जब ऑरा कंपोनेंट में आओगे तब फिर प्रॉब्लम फेस होएगी, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट में आओगे
तब प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। तो इन दैट केस प्रॉब्लम्स को फेस करने की बजाय हम केस सेंसिटिविटी को ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, है ना। थ्रू आउट प्रैक्टिस में रहते हैं ना, एसक्यूएल के लिए नहीं कहती मैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, एसक्यूएल को जैसे मर्जी करो, बट जब आप जावास्क्रिप्ट करेंगे, एचटीएमएल करेंगे ना, तब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एंड कैन बी रिटन इन मोर देन वन लाइन। देखो कैसे, देखो मैंने कहा select first name comma last name, ओके, कॉमा, और क्या करें, ईमेल कर लेते हैं, ईमेल कॉमा जॉब आईडी, ठीक है भाई, फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेमीकोलन। देखो आउटपुट आया ना, मींस योर स्टेटमेंट कैन बी डिवाइड इनटू मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ओके। बस सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, सेमीकोलन मींस इट शुड बी एंडेड, मींस ये एंड हो चुका है अब, ठीक है। तो आप एसक्यूएल को मोर देन वन लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी थी, इज देयर एनी ऑप्शन टू कॉपी पेस्ट, पता तो होगा, नहीं होता, नहीं होता, लिख लेते हैं। क्या लिखे, क्या लिखे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम जॉब आईडी, व्हाट एल्स, लास्ट नेम, ठीक है। दीज आर दी कॉलम नेम, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेमीकोलन, ठीक है। टू फेच दी मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। अभी हमने रो रिस्ट्रिक्ट नहीं करी है, सारा डेटा दिख रहा है, देखो देखो 106 रोज, ठीक है। फिर चाहे आप लास्ट नेम सिर्फ सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट कराओ, तब भी 106 रोज ही दिखेंगी, राइट, ठीक है। ऑल द डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉइज बट ओनली ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, okay, okay, that means all the columns, hmm, will going to show. Is that clear? Hmm? Is that clear, everyone? Yes. Yes, yes. Yes. Okay, so let's have a look upon arithmetic operators, hmm? That is plus, minus, multiply, divide, okay. Some basic operators, but if we continue to work on oracle, this command line ना, तो थोड़ा सा problematic नहीं लग रहा डेटा को रीड करना, although some of the trainers used to work on command line arguments, मतलब command prompt पे ही करते हैं पसंद, but I prefer कि रिकॉर्ड का ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, तो आई प्रेफर, क्योंकि कमांड्स तो वही है, तो आई प्रेफर दिस टूल, okay, Oracle SQL Developer. This is tool through which we can store the data in the same tool and communicate using SQL also, okay. So shall we start from this, hmm? Instead of this Yes. command line, Okay. okay. Yeah. Hmm. Okay, so connections, let's create connection. After clicking on this plus symbol, let's say Alma means username is HR, password is HR123, जो वहां सेट किया था वही सेम. We can test, yes, success, connect it. Again I have to, yeah, it's there. Select star from employees, semicolon has to be there, and this is the data, okay.
much readable form. Huh? Data is 106. Total number of records is 106. Employee ID, first name, last name, email, phone number. Hmm? All commands will be describe employees. Hmm? अब दो स्टेटमेंट हो गई ना, तो अगर सिर्फ इसको रन करना है तो आई हैव टू सेलेक्ट दिस एंड देन रन. ओके, देन इट इज गोइंग टू शो मी दी डेटा. क्या किया उसने? डिस्क्राइब कर दिया एम्प्लॉयज टेबल को. एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड ऑल. ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बेटर हो गया. वो कमांड प्रॉम्प्ट था, ये क्या है? ऑरेकल है. ओके, ऑरेकल का टूल है. ठीक है भाई, अभी इस पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो वी वर एट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. ओके, सी select 5 plus 6 from tab. टैब में टोटल जो ये ना एक लर्निंग पर्पस के लिए एक डिफॉल्ट एक टेबल है इंटरनली. ठीक है ना, हम इसको यूज करेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव डन, 5 plus 6 है ना, एक सिंपल हमने टैब के थ्रू उसको ऐड किया. सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, देखो आई कैन टैब. देखो अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं ना, डिस्क्राइब टैब. तो क्या है इसके पास में? देखो सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये ऊपर का नहीं है. हम्म, कह रहा है टैब टाइप varchar 2 एंड क्लस्टर आईडी नंबर, उसको वो नहीं मानता. देखो अगर मैं सेलेक्ट फ्रॉम टैब करती हूँ तो इसके पास क्या है? देखो एक डमी काइंड ऑफ डमी टेबल है इसके अंदर. देखो हम डमी भी यूज कर सकते हैं वैसे तो. डमी, डमी इसको वो अप्लाई करेगा? डमी को तो नहीं मान रहे वो. डमी के अलावा और क्या हो सकता है? टैब ही ले लेते हैं, है ना, टैब ही ले लेते हैं. या फिर शायद ऑरेकल ना ड्यूअल मानता है. ड्यूअल, आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ड्यूअल पे काम करते हैं. ठीक है ना, डमी इसकी कॉलम का नाम होता है. ओके, ठीक है ना, देखो एक ही रो है, तो अगर हम इसको ड्यूअल पे वर्क करवाएं, ड्यूअल पे वर्क करवाएं तो एक ही कॉलम आएगा. ठीक है, टैब पे मल्टीपल आ रहे थे. हाँ, 11 फॉर कह सकते हो आप इसको फॉर एक डमी मींस आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो यू कैन यूज दिस ड्यूअल टेबल. Okay, holding one column and one row only. Okay, similarly what you can do, you can use other operators like minus. हाँ, तो बिल्कुल सेम रहेगा. वो मुझे आउटपुट -1 दे देगा. ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसको इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर को एम्प्लॉयज टेबल के थ्रू करें, देखो जरा एक बारी करके देखते हैं. सैलरी पे करते हैं, है ना, पहले सैलरी सेलेक्ट करते हैं. वेयर इज सैलरी, सैलरी ये रहा, 50,000 14900, है ना. चलो क्या किया मैंने, मैंने कहा सेलेक्ट सैलरी प्लस 11. ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हुए. हाँ, एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. तो जो 50,000 था उसके अंदर 11 ऐड हो गया. आई गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, एक पर्टिकुलर एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ भी आप एडिशन कर सकते हो, ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हो आप.
ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये खुद से कर पाएंगे. टेल मी गाइस. Yes. Yes, ma'am. Right, it is just about arithmetic operator. You are performing some operations on the existing columns. ठीक है, ड्यूअल के साथ वो इसलिए बताया था ताकि आपको, अगर आप नहीं चाहते हो कुछ भी डायरेक्टली टेबल के साथ करना, तो यू कैन डू इट विद द ड्यूअल. ओके. अच्छा, एक बात बताओ, ये जो चेंज हुआ होगा वो सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यू के लिए हुआ होगा या फिर एक्चुअल एम्प्लॉयज में हो गया होगा चेंज? हम्म. क्या खाली अब इसी में जैसे, वो होगा। हाँ, केवल इसी व्यू में हुआ है क्योंकि हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है. ओके, हम कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेलेक्ट यूज कर रहे. सेलेक्ट इज यूज फॉर द करंट व्यू, इस पर्टिकुलर व्यू के लिए. देखो, अभी सैलरी आई है 50,011 रुपीज. ओके. अगर मैं अगेन सेलेक्ट स्टार करवाऊं तो अभी भी सैलरी 50,000 ही होगी. देखो, है ना, देयर इज नो चेंज. क्लियर? क्लियर ना? Yes. Yes. ठीक है ना. So I'm hoping you will do the arithmetic operators वाला काम अपने आप से. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है. यस. सो व्हाट एल्स, कॉलम एलियास कर लेते हैं. हम्म, देखो, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अभी देखो मेरा फॉर्मूला मुझे दिख रहा है ना. क्या ये सही है? नहीं. ओके. सैलरी प्लस 11, मुझे पता चल रहा है कि ये सैलरी कैसे आई होगी. तो इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रोवाइड द कॉलम एलियास. दैट इज, आपने कॉलम लिखा. हम्म, ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू यूज as as is a keyword, and in the double quotes you provide total salary. Okay. If you execute this statement now, so it is showing me total salary. Clear? Clear, guys? Yes. This Yes, is ma'am. column alias. Okay. uh, can be written as space total salary. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एज नहीं लगाना. हाँ, स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर आपने उसको शो किया. ठीक है. दिस इज ऑल्सो परफेक्ट. दिस इज व्हाट, कॉलम एलियास. ठीक है. दिस इज व्हाट, कॉलम एलियास. ठीक है. इज यूज टू रीनेम a column display heading. Okay. Requires double quotes. Okay. Right, guys? Point is कि जो भी आपने डबल कोट्स में लिख दिया वो केस सेंसिटिव बन जाएगा. ओके. रिक्वायर्स डबल कोट्स. ठीक है ना. इफ एक सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा और अब मैंने अगर डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया, तो विल इट वर्क? लेट मी चेक. यस, परफेक्टली. ओके, इट इज वर्किंग. मींस डबल कोट्स इफ it is containing space और स्पेशल कैरेक्टर. ठीक है ना. कोई स्पेशल कैरेक्टर है अगर उसका, ठीक है ना, तो हमें डबल कोट्स की जरूरत है, वरना नहीं है. देखो, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया तो वो चल रहा है ना. ठीक है. क्योंकि डबल कोट्स इज नॉट मैंडेटरी. क्लियर, गाइस? कॉलम एलियाज आप कैसे सेट करेंगे? हम्म
चलो, Yeah, got it. what you guys should Yes. do in this case, write a query, okay, to display the actual total salary. ठीक है, that is salary plus इसमें एक कॉलम है कमीशन पीसीटी. ठीक है ना, यानी ये सैलरी. डाटा कहाँ से रहा है? क्या? ये जो डेटा हम लोग लगा रहे हैं। ये डेटा, यस मैम। ये डेटा ना, देखो मैंने आपको अभी बताया था दैट एचआर यूजर जो है ना, वो अरेकल ओके ना बाय डिफॉल्ट देता है लर्निंग पर्पस के लिए ना. ये वाला डेटा ओके ऑलरेडी एचआर यूजर देता है लर्निंग ओके पर्पस के लिए. ठीक है, सेल्स फोर्स भी देता है. सेल्स फोर्स पे जब पढ़ोगे ना, देख जाओगे, तब उधर भी आपको मिलेगा लर्निंग पर्पस के लिए कुछ डेटा. ओके मैम। ठीक है ना, तो अब आप फटाफट से ये क्वेरी बनाओ. लेट मी शो यू डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज, आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा. दैट वी हैव टू कॉलम्स, एक सैलरी है, एक कमीशन पीसीटी है. दोनों को ऐड कर दोगे अगर, तो टोटल एक्चुअल टोटल सैलरी मिल जाएगी ना. अभी मैं नहीं चाहती ना ये करना, तो क्या बनेगी क्वेरी? डू इट फास्ट, सेंड मी इन द चैट बॉक्स द क्वेरी. परफेक्ट है ना. वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. Are you guys pasting the query? Am I audible, Manish? Yes, Anjali. So you are pasting the query? Yeah. Okay, okay. Shreya? Yes. Hmm. Very good. आई एम होपिंग किसी ने चीटिंग नहीं करी होगी आशीष की, है ना. हम्म. करेक्ट, करेक्ट दिफांशी. परफेक्ट. योगेंद्र, यू डूइंग? हाँ, नहीं किया मैम मैंने। नहीं आया समझ, या फिर ऐसे ही नहीं किया? समझ नहीं आया। अच्छा, क्यों? इट्स समथिंग टू सी, कंबाइनिंग टू डिफरेंट कॉलम्स, बिकॉज बोथ आर ऑफ नंबर टाइप. देखो, सैलरी, commission, both are of number type. Okay, as if I talk about, see, select salary, comma, commission, PCT. ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, फर्स्ट नेम भी ले लेते हैं. ठीक है, एग्जीक्यूट दिस. स्पेलिंग मिस्टेक है, कमीशन की स्पेलिंग डबल एस. हाँ, यस. कैन यू सी दिस, सैलरी, कमीशन, पीसीटी. ओके, सी.
पर इनकी है कमीशन दिस, ठीक है। सो आई वांट टोटल सैलरी, इसमें इसको प्लस करना था हमें, हाँ। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सैलरी प्लस 11 ऐसे अलग से, मैंने क्या किया, टू डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करवा दिया। ओके, प्रोवाइडिंग द सेकेंड वैल्यू एज अ कांस्टेंट, आई हैव प्रोवाइडेड द कॉलम नेम। ओके, तो एज इफ स्टूडेंट हैज पेस्टेड द क्वेरी आल्सो, दैट इधर ही मैंने लिख दिया सैलरी प्लस कमीशन PCT, ओके, एज टोटल सैलरी, ठीक है। अभी ये मेरे को प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएगा। हम्म, हम्म, अच्छा, कॉमा, सी क्या दिया आउटपुट इसने मुझे, टोटल सैलरी में नल, क्योंकि एनी ऑपरेशन डन विद नल वो नल ही देगा मुझे, ठीक है। फिर चाहे आप प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। बट अभी मुझे टोटल सैलरी मिल रहा होगा, देखो जहां पे कमीशन होगा ना, वहां पे मुझे टोटल सैलरी मिल रहा होगा, ठीक है। तो माय अरिथमेटिक ऑपरेशन इज वर्किंग ओवर हियर, 7200 प्लस 0.1, दैट इज 7200.1। अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड। तो जहां पे नल नहीं है वहां पे तो मिल रहा है ना, तो अभी के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर इज वर्किंग, ठीक है। सॉल्यूशन की ये नल ना आए, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे आगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अभी समझ में आया हाउ इट इज वर्किंग अगेंस्ट? Yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. कूल। सी थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो, इतना इतना डल क्यों, फर्स्ट क्लास है आज तो, इतना कुछ टफ भी नहीं है। हम्म, Yes, ma'am. ओके। Okay. करेक्ट, करेक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक अ ब्रेक, ओके। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना, एज इफ इट इज 11:10, सो मीट अप एट 11:30, ओके। Okay, ma'am. Okay, Ankita. Thank you, ma'am. Okay, ma'am.
You guys there? Yes, ma'am. Okay. Shall we start? Yes. Yes. Good, good, good. So let's start ahead. So let's have a look upon concatenation operator. Concatenation operator. Okay. That is pipe sign symbol. Okay. How it is work? Let's say I need to fetch the first name and last name. Okay. Let's say select first name, comma, last name from employees. Okay. Okay. Now I want both the column data in the one column. Okay. Now I want both the column data in the one column. So in that case, what I'll be writing with this command, I'm writing comma first underscore name, then pipe sign symbol, then last underscore name. Okay. Right. So these two columns will get concatenate. Okay. Understood? So let's execute this. See, first name, pipe sign symbol, last name. So Ellen Abel. Ellen Abel. ओके अब मुझे इस बीच में स्पेस भी चाहिए भाई स्पेस नहीं है ना लास्ट नेम फर्स्ट नेम के बीच में तो व्हाट आई कैन डू आई कैन प्रोवाइड दी सिंगल कोट्स स्पेस टाइप साइन सिंबल ठीक है भाई अभी लेट मी एग्जीक्यूट दिस so it is having the space let's say and the last name is मतलब प्रॉपर आप एक लिटरल भी लिख सकते हैं ओके इनसाइड द सिंगल कोट देयर इज अ डिफरेंस एलियाज के टाइम पे यू शुड हैव डबल कोट्स कहाँ गया ये रहा एलियास के टाइम पे यू शुड हैव डबल कोट्स वेयर एज कॉन्कैटिनेशन के टाइम पे यू शुड हैव सिंगल कोट ठीक है भाई ये चीज याद रहेगी यू शुड Yes. हैव Yes. सिंगल कोट ओके स्पेसेस दिए ताकि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब स्पेस के साथ में प्रिंट हो नहीं तो सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा ना ठीक है एलन एंड द लास्ट नेम इज एबल अंडरस्टूड हाउ इट इज वर्किंग ठीक है लेकिन देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे ऊपर तो क्या सॉल्यूशन है हाँ युगेंद्र युगेंद्र यू आर देयर Yes, ma'am. हाँ क्या सॉल्यूशन है मेरे को मेरा फॉर्मूला दिख रहा है मेरे हेडिंग में यस टेल मी नहीं पता क्यों नहीं पता। पता होना चाहिए था आशीष Yes, ma'am. व्हाट इज द सॉल्यूशन Ma'am, column alias. यस यस वी कैन प्रोवाइड द कॉलम एलियास ना Hmm. हियर आई कैन राइट एज फुल नेम नहीं बताओ युगेंद्र see now I am not having the formula I am having the proper heading full name this is nothing but the column alias अभी इससे पहले तो रहा था Okay, ma'am. okay Okay. okay so this is how you work with this okay
Mm, mm, mm. Excuse me, ma'am. Yes, Will you help us in downloading this software? definitely. I'll share you in the drive itself. Okay. 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 Otherwise, what you can do, you can as if आपको तो प्रैक्टिस ही करना Mhm. है ना, तो आप Oracle Live पे जा सकते हो. ठीक है, you can create your account on Oracle Live. Okay. यस मैम, मैंने किया हुआ है हाँ, ओरेकल लाइफ में। बिल्कुल. बस उसके अंदर ऑप्शन ये होता है कि इफ यू कैन नॉट फेच दिस टेबल एज इट इज. आपको वहां पे यस सर। स्पेशली HR.employees ये लिखना पड़ेगा. उसके यूजर नेम से उसको आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा. डिफरेंस Okay. सिर्फ इतना सा जाएगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस वहां कर सकते हो Oracle Live. ओके. Okay. Otherwise, I'll share the folder to the drive itself. Okay, ठीक. you can download it from there. चलो एक क्वेरी मैं आपको देती हूँ, आप करो. मैंने कहा राइट अ क्वेरी टू फेच all the records, that is rows, मैं rows की बात कर रही हूँ इधर, from the database, mm, and display the output in below format. Yeah, and the format is the employee having employee ID. Okay, 100. Steven Egg 100 है उसकी. Hmm, is Steven King. ठीक है. एक्सप्लेन करूं अगर मैं, तो ये एम्प्लॉय आईडी टेबल से आ रही है, ये नेम टेबल से आ रहा है, और ये लास्ट नेम टेबल से आ रहा है. ठीक है. ड्रॉइंग दी सैलरी 50,000. जहां तक मुझे ध्यान है 50,000 ही है इसकी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. देखो, फॉर योर हेल्प मैं आपको बता रही हूँ. स्टीवन की आईडी 100 है. ठीक है, लास्ट नेम किंग है, और सैलरी 50,000. ठीक है. चलो फटाफट से मुझे बताओ जरा क्वेरी फॉर दिस फॉर्मेट. मुझे इसी फॉर्मेट में सिर्फ एक ही रो चाहिए. नहीं, एक रो नहीं, एक कॉलम. सिर्फ एक कॉलम चाहिए जिसमें ये 100 आपकी एम्प्लॉय आईडी है, स्टीवन फर्स्ट नेम है, किंग लास्ट नेम है, और ये जो सैलरी है ये सैलरी है. ठीक है, बाकी सब कुछ लिटरल है. क्या है? लिटरल. गिव मी द सॉल्यूशन फास्ट. ओके.
थोड़ी सी मिस्टेक है मुजाहिद। चेक करो, ये 50,000 स्टीवन, ये सब तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने की जरूरत है लिटरल, ठीक है। ट्राई करो, इट्स रॉन्ग क्वेरी। मिस्टर अमीबा, कितना हुआ? डूइंग मैम। हेलो मैम, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, अमीबा से। ऋषभ, ऋषभ ही है ना? यस मैम। हाँ, कितना हुआ? मैम डूइंग मैम। ओके ओके। यस दीपक, आपका कितना हुआ? मैम अभी थोड़ा सा, इट्स माय फर्स्ट टाइम बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। मुझे एक बार मैम, मुझे एक बार वहाँ पे और आपने बताया ना ओरेकल लाइव पे जाके मैं प्रैक्टिस करके आपको हाँ कल हाँ, बता दूंगी मैम। थोड़ा सा एक बार मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फ थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी वैसे देखो वीडियो ना, देख। अभी देखो तो सही। मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है, आप इसकी क्वेरी ट्राई तो करो। यू कैन बी रॉन्ग ना, फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, यू एक्चुअली कैन बी एक्चुअली रॉन्ग। आई एम लॉगिन फ्रॉम माय फोन सो दैट्स व्हाई बिकॉज़ माय अच्छा, सिस्टम ओके इज ओके पैक्ड। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नहीं प्रतीक, नो, कॉमा तो आएगा ही नहीं, कॉमा तो आएगा ही नहीं। योर क्वेरी देखो, आपकी क्वेरी क्या है, देखो, लेट मी शो यू। आपने लिखा है ये, है ना? आपने ये लिखा है, देखो, ये सेपरेटली सारे कॉलम्स को प्रिंट कर देगा। क्या हो गया इसे? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, फर्स्ट नेम में अंडरस्कोर आएगा। देखो, ये सारी वैल्यू, सारे कॉलम्स अलग अलग दे रहे हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट है एक ही कॉलम के अंदर ये पूरा डेटा प्रिंट हो। गेटिंग? रेफरेंस के लिए ना वेयर क्लॉज नहीं आएगा पठान साहब, वेयर क्लॉज नहीं आएगा। अगर आप स्टीवन का ऐसे प्रिंट करा रहे हो तो सबका ऐसा दिखे, वेयर क्लॉज अभी मैंने नहीं गिराया, ठीक है। ऐसा कुछ यूज करने की कोशिश करो, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, मे बी हो जाए। वेयर क्लॉज नहीं आएगा, वेयर क्लॉज मत लगाओ। और कौन है? दिवांशी, दिवांशी आपने ट्राई किया? ट्राइड बट लग रहा है गलत है मैम। अच्छा, एक बारी पेस्ट जस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, देखते हैं। या मैम, हम्म थॉट समथिंग लाइक दिस। देखो, काफी हद तक मैच करा है, काफी हद तक रिक्वायरमेंट को काफी हद तक मैच किया है आपकी आपकी क्वेरी ने। मुझे लगता है काफी कम चेंजेस करने पड़ेंगे इस क्वेरी में। आई गेस या सैलरी, ड्राइंग सैलरी एस के बाद फिर कॉन्कैटिनेशन लगना था एंड कुछ इधर ही कुछ गड़बड़ है। लेट मी सी। देखो, एक तो ना यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सब ओके देखो, यहाँ पे मैम। देखो सब। ओके, देखो क्या किया, एज इफ मेरी जो स्टेटमेंट थी, मेरी जो रिक्वायरमेंट था वो था द एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी। ये पार्ट कंफर्म है कि लिटरल है ना? तो ये पूरा का पूरा लिटरल में जाना चाहिए था, ठीक है। हैविंग के बाद एम्प्लॉय आईडी भी, ठीक है। तो हैविंग के बाद एम्प्लॉय आईडी भी मैंने लिखा, सिंगल कोट्स के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। कॉन्कैट विद एम्प्लॉय आईडी एज इट इज उठ के आ रहा है ना, 100 है क्योंकि, ठीक है, एज इट इज उठ के आ रहा है। तो उसके बाद में कॉन्कैट दोबारा लिटरल से किया। सी, डिफरेंस इज ये कॉलम, कॉलम की वैल्यू है और ये लिटरल है। तो जहां कॉलम की वैल्यू एंड लिटरल साथ में आ रहे होंगे वहां पे कॉन्कैटिनेशन सिंबल आएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी इज द कॉलम वैल्यू, मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए एक तो ये सिंगल कोट्स में नहीं आया,
है ना, इट इज नॉट इन दी सिंगल कोट्स. पाइप साइन सिंबल, फिर इज, राइट, स्पेस दे देते हैं, फिर पाइप साइन सिंबल, क्योंकि इसके बाद अच्छा नहीं, देखो ना, स्टीवन किंग, स्टीवन किंग इज दी, अच्छा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है ये तो आपने किया फर्स्ट नेम, कॉमा नहीं आएगा ना, फिर यहाँ पर आएगा, दो कॉलम कॉन्कैट हो रहे हैं, फर्स्ट नेम कॉन्कैट लास्ट नेम, इवन बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए हो सकता है ना, ऐसा कुछ, गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ, क्योंकि मुझे स्टीवन Yeah. किंग के बीच में स्पेस चाहिए. ओके, Yes, तो getting it. दिस शुड बी दिस, देन मुझे चाहिए स्पेस कॉमा ड्राइंग दी सैलरी, ये लिटरल है ना, ये इतना पार्ट लिटरल है, देखो, ड्राइंग दी सैलरी लिटरल है, तो लिटरल हैज टू बी इन सिंगल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे एज नहीं आएगा, यहाँ एज नहीं आएगा, अभी अभी सैलरी, राइट ना, सैलरी क्योंकि मेरा कॉलम वैल्यू है, तो यहाँ अगेन कॉन्कैटिनेशन सिंबल आ जाएगा. परफेक्ट, है ना. ठीक है, इतना पार्ट लिटरल था ना, क्योंकि ठीक है, Yes. सैलरी अगेन एक कॉलम है, तो पाइप साइन सिंबल के बाद कॉलम आ गया, फ्रॉम एम्प्लॉइज. ठीक है, करके देखिए एग्जीक्यूट इसको, देखो जरा क्या आ रही है आउटपुट. द एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी 100 इज स्टीवन, हाँ, ठीक है ना, ड्रॉइंग दी सैलरी 5,000, 50,000, बन गया ना. अंडरस्टूड एवरीवन, क्वेरी Why समझ it's में. taking only 100 as employee ID? माने ये is it common, unique for every employee? व्हाट, एम्प्लॉय आईडी, Yeah. नो, देखो ना, 101, 102, 103 इट्स डिफरेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय. अच्छा. So okay, just giving employee ID, so it's taking everyone, मतलब not Yes, exactly the employee 100. ID. If you are providing employee ID here, na, it means you are providing the column. ऐसे नहीं कहते select employee ID, comma first name. तो it is हम्म. showing me each and every ID of the employee, each and every name of the employee. Right. तो just changing the format of displaying format, display format change करने से वो restriction तो ना कर देगा कितना रो दिखना चाहिए. No. Okay. It will just show me for all. Okay, okay. Okay. For all the columns. So it is common for all. देखो, एम्प्लॉय आईडी 101, 103, 104 सबके लिए दिखा रहा है, उसी पूरे के पूरे डेटा को अब उसने सबके लिए दिखा दिया. पठान साहब यहाँ देखिए, वेयर फर्स्ट नेम, या फिर एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 100. ठीक है, इस पार्ट को लिखेंगे तो वो मुझे सिर्फ स्टीवन का देगा. देखो, अब उसने मुझे सिर्फ स्टीवन का दिया, राइट. Yes, ma'am. आई गेटिंग. वेयर क्लॉज लगाने से क्या डिफरेंस आया, हम्म, समझ में वो आ गया अभी. स्पेसिफिक उसी को दे देना। हाँ जी, बिल्कुल. ओके, बट माय रिक्वायरमेंट वेयर क्लॉज की अभी नहीं थी. ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि वो पूरा पूरा कॉलम जो है, पूरा जो डेटा है, वो मुझे इस फॉर्मेट में शो करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ रोज, कि वो मुझे कितनी रोज शो करे. ओके, इज इट क्लियर Yes, नाउ. ma'am. दिस इज द करेक्ट क्वेरी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. श्रेया, Yes, ma'am. Clear. Yes. प्रतीक, Yes, ma'am, clear. दीपक, Yes, ma'am, is it clear? युगेंद्र. यस मैम. अभी इजी लग रही होगी ना, ऐसे जनरली लगता है बच्चों को, जब क्वेरी सॉल्व हो जाते हैं ना, तब लगता है अरे ये इतनी सी थी, ऐसी वाली फीलिंग आती है. Right, ma'am. है ना. Yes, ma'am. चलो, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो आगे करते हैं. तो अभी फिलहाल अभी देखो यहाँ पे अगेन, योगेंद्र, मुझे बताओ जरा, ये हेडिंग में मेरे को फॉर्मूला दिखा रहा है पूरा,
कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? हम्म, यू एबल टू सी दिस? यस मैम। तो ये तो पूरा फॉर्मूला दिखा रहा है, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? हम्म, पता नहीं मैम। मनीष, यू नो दिस? No, I'm not sure. सी, दिस इज द फॉर्मूला ना जो दिख रहा है मुझे ऊपर। इस फॉर्मूला को टेबल हेडिंग मुझे चेंज करनी है एट द डिस्प्ले टाइम। सो यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि मुझे सिर्फ चाहिए एम्प्लॉय डिटेल। You can include as. As alias. यस, आई कैन इंक्लूड as Elia's name, that is, let's say employee details. In spite of providing the full formula, अब वो मुझे सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स देगा। इतना सिंपल है योगेंद्र, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा ये? मैंने ये आपसे दूसरी बार पूछा है क्वेश्चन। हम्म, ओके, so let's move ahead. Okay, by introducing where clause. See guys, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो you should have more practice. Okay, little more concentration. Otherwise I can't help you. This is too trivial concept that if something is showing in the column heading of a record of a data, तो उसको एक specified manner में कैसे show किया जा सकता है instead of showing the full formula, so we can provide the column alias. This is very trivial point. Please concentrate. This is not that tough. अभी तो कुछ टफ आया ही नहीं एक्चुअल में. This is not that tough. Okay, so let's continue with the where clause. So where clause is used to fetch only specify specify specific like that, specific rows. Okay, that is or records which are satisfying the given condition. Okay, syntax goes like mm, select column list. Okay, इसको तो अब हमें आता ही है. From your table name. Okay, where clause is here now, where and your condition, जैसे कि अभी करी थी. हम्म, मैंने कहा था क्या, select first name comma last underscore name from employees. हम्म, अभी इस स्टेटमेंट को अगर हम रन ऐसे स्टेटमेंट को अगर हम रन करेंगे तो इट विल शो मी all the data, all the rows, okay, of the employee table. Hmm, that is 106 records. Okay, 106 records. But here I am saying that what if I want to fetch the data where last name is equals to the string values. Okay, the varchar value has to be inside single quotes. यही अगर सैलरी होती ना तो नहीं होता. तो single quotes not required. But मैंने कहा where last name is equals to king. See,
values are case sensitive. Okay, values are case sensitive. King ka k is capital. King ka k is capital. King. It's here. King k. Okay, we have two employees with having king name, last name. Okay, maybe और हो सकता है, but जहाँ तक I remember, two ही employees हैं. Let's check. Yes, two. Okay, so only two records are there now, not 106 records. 106 records नहीं दिखे ना अब. क्यों नहीं दिखे? Because where clause is used to fetch only specific rows. Okay, कौन सी rows? Which are satisfying the given condition. What is the condition? My condition is मुझे बस उतना ही data चाहिए. I want only that data where last name is equals to king. Understood? Understood this point? Yes, ma'am. Okay. So this is something. Question 1, that is write a query to fetch uh, the employee first name and last name. Okay, where last name is equals to name. Okay, so this is the solution. So here I will write some note to you that all these string and date literals means values. Hmm? That is values. Okay, that you need to write in single quotes. Okay, the way I have written king. Okay, and also the literals are case sensitive. ओके, इन शॉर्ट अगर मैंने यहाँ के स्मॉल लिखा होता ना, अभी देखो मैंने अभी इसको रन किया, इट इज नॉट शोइंग मी एनी डेटा, क्योंकि उनके लिए कैपिटल के एंड स्मॉल के टू डिफरेंट लिटरल्स हैं. ओके, आई गेटिंग दिस पॉइंट. सो किंग, क्योंकि रिकॉर्ड में जो किंग है वो कैपिटल के वाला किंग है, बीइंग रीजन इट इज नॉट शोइंग मी एनीथिंग, बट नाउ इट इज शोइंग मी द वैल्यू. ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Right. Similarly, if I want to fetch the data, okay, where employee ID is 105, suppose. Okay. Question is, fetch the data where employee ID is 105. ठीक है ना? तो इस केस में जो क्वेरी होगी तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू, क्या 105. हम 105 को सिंगल कोर्स में लिखेंगे? नो. No. ओके, हम 105 को सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रिंग लिटरल. ओनली स्ट्रिंग लिटरल एंड डेट. कहाँ गया ये रहा? स्ट्रिंग एंड डेट लिटरल्स हैज टू बी इन सिंगल कोट्स. ये नंबर टाइप है. ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस. तो 105 पे डेविन ऑस्टिन है. ओके, डेविन ऑस्टिन की आईडी है 105. लेट मी प्रिंट द आईडी एज वेल, कॉमा एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. लेट मी सेलेक्ट दिस, so it is showing me the ID also. Clear? Are you getting this? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sure. Abhishek? Yes. Yes. Cool. Manish? Yes, it's clear. Pratik? Yes, ma'am. Clear है. Good. All clear है या थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? मैम all clear है. All clear है. चलो, ये Yes, तो ma'am. अच्छी बात है फिर.
उम, 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 अच्छा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच के करते हैं, ठीक है? ऑल्दो मैंने कराया नहीं है, तो आई मीन मैंने कराया नहीं है, इट मीन्स मैंने अभी उसको उस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना? इस क्वेरी के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मैंने कहा राइट अ क्वेरी, ठीक है, टू डिस्प्ले द record of those employees whose last name is equals to ऑस्टिन. अभी हमने ऑस्टिन देखा ना, ऑस्टिन, ठीक है? एक किंग भी देखा हमने, ठीक है? लेट्स से मेरे को ये चाहिए, मुझे ऑस्टिन एंड किंग दोनों चाहिए, सपोज इक्वल्स टू ऑस्टिन और किंग, मुझे वो दोनों चाहिए, ठीक है? मतलब मुझे डेविड भी चाहिए और वो स्टीवन और क्या था, जेनिफर मे बी, है ना? मुझे वो सब चाहिए. तो इस केस में क्वेरी क्या होगी? लेट्स मूव अहेड हियर. देखो, वेयर लास्ट नेम इज किंग, ओके, यहाँ पे स्पेस और, ओके, और इज द ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, these three are the logical operators. ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े ना हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही अब हम आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, ठीक है? इट इज यूज्ड इन कंडीशंस, ठीक है? कंडीशंस के टाइम पे हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है? मैंने कहा लास्ट नेम इज इक्वल्स टू किंग एंड लास्ट नेम इज इक्वल्स टू ऑस्टिन. देखो, ऑस्टिन का ए कैपिटल है, देयर इज ऑस्टिन ए इज कैपिटल, सो आई हैव टू राइट ए कैपिटल, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सो नाउ लास्ट नेम जिसका भी ऑस्टिन एंड किंग था वो मुझे रिकॉर्ड मिल गया. आई गेट इट, बोथ क्लियर? दिस क्वेरी इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ, इस Yes. और ने क्या किया, जिधर जिधर भी इसको लास्ट नेम किंग और ऑस्टिन मिला, उसने वो वाला रिकॉर्ड रिकॉर्ड मुझे दे दिया. क्लियर? ऐसे ही अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूट दिस, चल हुनॉल्ड, ठीक है? इसी क्वेरी में ऐड ऑन करते हैं, और हुनॉल्ड, हुनॉल्ड का एच कैपिटल है ना? और कोचर, है ना? यही था ना? हम्म, ठीक है ना? तो क्या होगा, और उतने ही और लगते रहेंगे, है ना? और किंग और लास्ट नेम ऑस्टिन और लास्ट नेम हुनॉल्ड और लास्ट नेम कोचर, नहीं? जस्टिफाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? सो दिस विल नॉट ओनली शोइंग मी द किंग और ऑस्टिन, बल्कि हुनॉल्ड एंड कोचर ऑल्सो, ठीक है? सो हियर और is the logical operator, ठीक है? where, अब ट्रुथ टेबल पता है ना, और की, और एंड की ट्रुथ टेबल पता है ना, वेयर बोथ दी कंडीशन, देखो ये भी एक Yes. कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है ना? ये भी एक कंडीशन है, राइट? किसी का सरनेम शर्मा होगा अगर, तो वो नहीं आएगा ना, इसकी किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है? जिसमें ट्रू हुआ वो चल गया, ठीक है? इसे मतलब नहीं है कि नेक्स्ट में क्या है, यही अगर मैंने एंड लगा दिया होता तो कोई आउटपुट आता, सोच के बताओ. नहीं.
कोई आउटपुट ही नहीं आता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का लास्ट नेम किंग भी हो और ऑस्टिन भी हो, है ना? तो कंडीशन हैज टू बी डिफरेंट, कि जिसकी लास्ट नेम किंग हो और सैलरी 50,000 हो। देखो कंडीशन लगाते हैं, देखो इस केस में एंड लगाएंगे, ठीक है ना? देखो मैंने कहा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम तो किंग हो, ठीक है, और मुझे पता है स्टीवन की सैलरी 50,000 थी, है ना? कर देते हैं सैलरी इक्वल्स टू 50,000, ठीक है भाई, समझ आया? तो अब जहां मेरा किंग जेनेट भी है ना, अब सैलरी भी आ गई, तो इसलिए वो सिर्फ मुझे स्टीवन किंग दे रहा है, राइट? बिकॉज एंड के केस में बोथ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू, मीन्स जिसकी नेम भी किंग हो, लास्ट नेम भी किंग हो और सैलरी भी 50,000, और यहीं पे मैंने अगर और लगा दिया होता तो वो सारे एम्प्लॉयज जिसका लास्ट नेम किंग है एंड जिनकी सैलरी 50,000 है, वो सब आते। ओके, देखो बाय चांस 50,000 सिर्फ स्टीवन की है ना? सबसे रिच एम्प्लॉय स्टीवन है। एक काम करते हैं ना, 10,000 बना देते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा डेटा मिल जाएगा, है ना? 10,000 तो पक्का से किसी की होगी ही होगी। परफेक्ट, है ना? देखो इतने 4 और एम्प्लॉयज थे जिनकी सैलरी 10,000। देखो इनका लास्ट नेम तो किंग नहीं है ना? ये टक्कर है, ब्लूम है, ये बेयर है, राइट? बट क्यों आया? क्योंकि सैलरी 10,000 थी, मीन्स वो दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू होगी तो इट विल वर्क। ओके, इज दिस क्लियर? एंड और का सीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपक? Yes, ma'am. Is it clear? ओके फाइन। अच्छा ये क्वेरी थोड़ी सी देखने में लग नहीं रहा कि ऐसे तो हमें कितनी बार और लिखना पड़ेगा। हम्म, Yes, ma'am. है ना? थोड़ा सा बेटर बनाए। कैन बी रिटन एज, देखो मैंने कहा फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू की जगह ना, व्हाट वी कैन डू, वेयर लास्ट नेम, ओके, इन इन इज द अनदर ऑपरेटर, ठीक है? इन के अंदर ना हम पैरेंथेसिस बनाते हैं, ठीक है, और इधर अब सारे के सारे लास्ट नेम को प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमा कॉमा, समझ रहे हो? Are you getting this point? Query is much simplified. Okay, वो मुझे उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स देगा जिनका नाम या तो किंग है, ऑस्टिन है, होनॉल्ड है या कोचर है, ठीक है? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ अब क्योंकि हमने एंड और के बारे में पढ़ा है तो नॉट के बारे में भी पढ़ते हैं ना। लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है, मैम वन क्वेश्चन, यस, जैसे इसमें इन करके आपने लिखा तो ये तो और के लिए हो गया स्पेसिफिकली, तो एंड कैसे सेग्रीगेट करेंगे if हमें एंड क्वेरी लगाना हुआ तो? नहीं एंड के लिए नहीं होता। अच्छा बस और के लिए होता। यस यस, ओके। इक्वालिटी, और मत सोचो इसको, इसको इक्वालिटी के लिए लिखो। इन जो है ना वो इक्वालिटी के लिए मेजर करता है अपने आप को, कहते हैं लास्ट नेम इनमें से किसी एक में भी इक्वल कर जाएगा ना तो, ठीक है? ओके ओके ओके। ओके, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा इन इज एक्चुअली इक्वल्स के लिए ही काम करता है। ओके ओके फाइन, जब हमने एंड और देख लिया है तो व्हाट इफ आई वांट इन अबव क्वेरी
I don't want those employees whose last name is this. Now we use not in. Exactly. है ना? तो सिंपली इसके आगे बस हमें लगाना है नॉट, है ना? नॉट इन दिस, तो वो सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनकी लास्ट नेम ये नहीं है. ओके, तो रिकॉर्ड इस बार देखो ज्यादा है. कितने ज्यादा है? 101. केवल 5 रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो 5 रिकॉर्ड्स इन लास्ट नेम को होल्ड कर रहे थे, है ना? टोटल में हमने देखा था ना एम्प्लॉयज में हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव? 106, 106. है ना? तो ये 4 है और किंग 2 थे, तो 5 एम्प्लॉयज थे जिनका नाम ये है. तो 106 माइनस 5, 101. ठीक है. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट एंड और? Yes. प्लीज Yes, रेज ma'am. योर हैंड इफ यू आर नॉट understood this point. प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज फिर मैं आप क्वेश्चंस दूंगी, आपको फिर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं, सब कुछ समझ में आया? वेरी गुड. चलो. उम, उम, उम. अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं इसको. मैंने कहा राइट अ क्वेरी, ठीक है, टू डिस्प्ले the record of those employees whose salary is 10,000, 10,001, मतलब बहुत सारी, है ना, अप टू 50,000. तो इसकी भी रेंज बनाना तो बड़ा ही बेकार हो जाएगा ना. मतलब ऐसे इन करके अगर आप बनाओगे सबको कंपेयर कराने के लिए, तो इन भी अपने आप में बहुत ही बड़ी हो जाएगी. नहीं, क्योंकि फिर हमें Yes. हर एक वैल्यू के साथ में उसको कंपेयर कराना होगा, राइट? तो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन. ओके, व्हेन वी आर इन स्ट्रिंग. बट व्हेन वी इन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिक टर्म्स के साथ में वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. ओके, सो इन दैट केस वी हैव द ऑप्शन बिटवीन. ओके, वी हैव द ऑप्शन बिटवीन, कि मुझे चाहिए कि 10,000 से 50,000 के बीच में जितने एम्प्लॉयज हैं who are drawing the salary from 10,000 to 50,000, I want those records. ठीक है, of employees. तो क्या कर सकते हैं उसकी क्वेरी? सेलेक्ट फर्स्ट नेम, salary from employees where where salary, सैलरी पे कंडीशन लगनी है ना. सैलरी बिटवीन, ओके, 10,000, ये एंड दूसरा है यहाँ पे. ठीक है, ये बिटवीन के कॉम्बिनेशन में लग रहा है. ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर वाला एंड नहीं है. एंड 50,000, तो ये एक रेंज डिफाइन हो गई इन शॉर्ट. ठीक है, ये एक रेंज डिफाइन हो गई इन शॉर्ट. लेट मी सेलेक्ट दिस. इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी डिजिट इन 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 वाले पैरामीटर्स में हमने रेंज दे दी, तो वो सारी सैलरी वाले एम्प्लॉयज आ गए जिनकी रेंज 10,000 से 50,000 है. ठीक है, अंडरस्टूड Yes, हाउ वी ma'am. हैव डिफाइंड द रेंज, मनीष? मैम रेंज लेस देन ग्रेटर देन से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे अभी, उस पे भी आएंगे. ठीक है, ओके. सी देखो अभी बोला है तो कर देते हैं. और कैसे कर सकते हैं इस कमांड को? मैंने कहा सेलेक्ट, इतना तो सेम ही जाएगा ना, तो कॉपी पेस्ट कर. सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज मोर देन इक्वल्स टू 10,000, है ना? अब बताओ यहाँ पे एंड लगेगा कि और लगेगा? एंड लगेगा कि और लगेगा? दो कंडीशंस आएंगी ना, लेस देन इक्वल्स टू 50,000,
है ना? टेल मी, ये दो कंडीशंस है, इनके बीच में क्या लगना चाहिए? ये दो कंडीशन मैम दोनों ट्रू होंगी तभी और रेंज बनेगा। और एंड और और क्यों लगेगा, बताना जरा मुझे। ऐसे तो क्योंकि जिसकी 10,000 से ज्यादा होगी and और नहीं भी होगी, क्योंकि 50,000 से लेस भी तो कैलकुलेट करवा रहे हैं हम, तो फिर तो सारी सैलरी दे देगा। नहीं, रेंज स्पेसिफाई करने के लिए देयर शुड बी एंड ऑलवेज। आपको जब बाउंड्री लाइंस डिफाइन करनी है, ठीक है, कि वो सैलरी 9,000 नहीं हो, देखो सैलरी अगर 9,000 होगी तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी ना, सोच के देखो, Yes, ma'am. है ना? बट मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे को तो बाउंड्री सेट करनी है दैट सैलरी शुड बी इन 10,000 एंड 50,000, है ना? तो इस केस में एंड आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू वर्क विद दिस। अब देखो आपके सामने है, कोड कितना किया आपने इस केस में और इसमें कितना किया, एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई ना। जो कोडर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, लाइन ऑफ कोड्स कम से कम रखना प्रेफर समझते हैं, ठीक है। आउटपुट वही आया होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। आई होप आप डिफरेंस बिटवीन एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में क्लियर है कि व्हाट इज एग्जैक्टली और एन एंड। Yes, ma'am. इसी में ही अगर मेरे को क्वेरी बनानी है, सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, whose salary is not between 10,000 and 50,000, तो क्लियर है? क्या करेंगे? सिंपल नॉट ऑपरेटर यूज कर देंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ओके, नॉट बिटवीन, their salary not between, clear? क्लियर। अब वो रिकॉर्ड आया है जो 10,000 और 50,000 से कम है, क्योंकि मुझे पता है 50,000 इज द हाईएस्ट वन, स्टीवन सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। यस मैम। ठीक है भाई, देखो ये सब 10,000 से छोटे हैं, अंडरस्टूड। नॉट का यूसेज अब और बेटर, यस। Yes, ma'am. ओके। तो अब थोड़ा सा इसको जो एक अनकवर्ड पार्ट है उसको थोड़ा सा ओपन अप कर देते हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंट ऑपरेटर्स which can be used in where clause, ठीक है। फॉर क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन, कंपैरिजन करके हमें को डेटा मिल रहा है। सो इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इक्वल्स टू देखा था, लास्ट नेम इक्वल्स टू किंग, फिर हमने देखा और, फिर हमने देखा एंड, बिटवीन, बिटवीन के कॉम्बिनेशन में एंड भी था एक, फिर हमने नॉट बिटवीन देखा, एंड उसके कॉम्बिनेशन में था, हमने इन भी देखा था, नॉट इन भी देखा था, व्हाट एल्स, लेस देन भी देख लिया, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट, क्लियर। इक्वल्स टू नहीं होता इधर, इक्वल्स टू का काम इक्वल्स टू कर रहे हैं, है ना, डबल इक्वल्स टू का काम सिंगल इक्वल्स टू कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग के अंदर आप इफ एल्स के अंदर आप डबल यूज करते हैं ना, राइट, इधर आप सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं, ठीक है। प्लस इसमें नॉट इक्वल्स इन इन के साथ में कैसे होता है, ऐसा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ऐसा होता है, ठीक है। आई होप दीज ऑल ऑपरेटर्स आर वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। यस मैम। yes, ma'am. योगेंद्र, योगेंद्र यू देयर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया समझ? यस।
Abhishek? Yes, I've understood. Cool. You are comfortable with little much Hindi also, na? Or Yeah, should yeah, I? I understand Hindi. Yeah. Okay, fair enough. Chalo, let's move ahead. Uh, अब जो नहीं किया वो है like operator. Like. This is nothing but wildcard characters. Okay. Mute yourself. ठीक है. कैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं. लेट्स से मैंने क्वेरी लिखा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ऑफ दोज एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम starts with A. ठीक है. मैंने स्पेसिफिकली अलेक्जेंडर नहीं लिखा. ओके. मैंने कहा जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल मुझे चाहिए. ठीक है. तो इस केस में हम ये यूज करते हैं. कैसे बनेगी क्वेरी? देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर फर्स्ट नेम की बात हो रही ना. फर्स्ट नेम. अब इधर इक्वल्स टू नहीं आएगा. ओके. इधर आएगा लाइक ऑपरेटर. लाइक. ओके. एंड एज इफ दिस इज द लिटरल जो हम कैरेक्टर पास करने जा रहे हैं, जो वाइल्ड कार्ड सेक्शन है, हाँ, वो कैरेक्टर नहीं है. हम्म. देखो, मैंने कहा ए. ओके. ठीक है. और आगे मैंने दिया परसेंटाइल. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हियर परसेंटाइल मींस 0 और एनी नंबर. किसी का नाम ए भी हो सकता है, ऐसे मैंने कहा. ऑफ कैरेक्टर. अंडरस्टूड? मींस किसी का नाम अंकिता है तो चलेगा, किसी का नाम एंक है तो भी चलेगा. मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुड बी देयर. तो ये जो परसेंटाइल है इज वाइल्ड कार्ड. ये मेरा वाइल्ड कार्ड है. अंडरस्टूड? देखो अभी रन करके बताते हैं. So it is showing me all the first name, not first name, but all the data of the employees whose name starts from A. Clear? यही अगर मेरे को पता लगाना है कि जिसका एंड भी ए से हो रहा हो. ए तो सिर्फ दो ही है. देखो, अलाना है और ये अल्वेसा है. ओके. तो क्या करेंगे? ए, अब कुछ भी हो और एंड में भी ए हो. गेटिंग गेटिंग हाँ, समझे? समथिंग लाइक कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में कुछ भी हो मुझे चाहिए. तो केस सेंसिटिविटी है भाई. कैपिटल और स्मॉल का. तो एल्वेसा एंड अलाना ही आए मेरे पास में. ठीक है. इधर मैं अगर इनके ए को भी कैपिटल कर दूंगी तो कुछ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जो एंडिंग ए है वो स्मॉल लेटर्स वाले ए है. ओके. एवरीवन क्लियर? अंकिता, अगर आगे वाले ए को भी हटा देंगे तो भी रिजल्ट आएंगे ये? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा. तब होगा ऐसा कुछ. तब ये क्वेरी पता है कैसी है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज हुज नेम एंड्स विद ए. है ना? कि भाई एंड स्टार्टिंग किसी से भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो, एंडिंग ए से होनी चाहिए. ठीक है. समझे? यस. देखो, लेट मी रन दिस. तो उसने मुझे स्टीवन नहीं दिया होगा. 100 नहीं दिया होगा इसने पक्का से. हाँ, नहीं दिया. देखो स्टीवन, क्योंकि उसका लास्ट एंडिंग ए नहीं है. नीना का ए है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है. समझ में आया? यस. Yes, ma'am. ठीक है ना?
फॉर योर रेफरेंस, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसके लिए एक डिफरेंट बना देते हैं, दैट इज ends with a, ठीक है, राइट, end with a, t, m, कुछ भी, तो आगे परसेंटाइल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज देखना पड़ेगा उसके लिए रिकॉर्ड, देखते हैं, कुछ फॉर्मेट बनाते हैं, किसका फॉर्मेट बनाए, एन ए का, देखो लास्ट में इन दोनों के एन है ना, एन ए है, ठीक है, और अम, 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 कौन सा ले, देखो इसके अंदर मुझे दिख रहा है किसी में बीच में टी भी है, ये रहा देखो, टी इसमें भी है, इसमें भी है टी, है ना, सेंटर में कहीं टी है, ठीक है, स्टार्टिंग एम से है, एंडिंग ए से है, सेंटर में टी भी आ रहा है कहीं, ठीक है, तो करके बताओगे मुझे एक बारी फॉर्मेट, उससे क्लियर होएगा। मेरे को चाहिए कि स्टार्ट्स फ्रॉम एम, ठीक है, मीन वाइल इन द मिडल कहीं पे भी टी आए, और एंड्स विद ए, इन मिडल कहीं भी, इन बिटवीन द नेम टी हो और एंड्स विद ए हो। यस दिवांशी, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यस, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ इसका आउटपुट, मतलब आउटपुट नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये लाइक के बाद यहाँ पे क्या आएगा सिंगल कोट्स में, कि स्टार्ट तो एम से हो रहा हो, एंड ए से हो रहा हो, और बीच में कहीं पे भी टी हो, कहीं पे भी टी हो, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक प्लेस, बट कहीं पे भी टी हो। यस, परफेक्ट, है ना, समझ में आ गया बाकी बच्चों को भी। Yes. आशीष इज द फास्टेस्ट वन, परफेक्ट, है ना। अच्छा एक चीज देखो अब, थोड़ा सा इसको ना वो करते हैं, यस परफेक्ट दिवांशी, देखो अभी इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। क्या करें, देखो मार्था के अंदर थर्ड लास्ट कैरेक्टर है टी, और मेटिया के अंदर टू टीज है ना। मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए कि एम के बाद सिंगल लेटर का स्पेस हो, फिर टी हो, ठीक है, बट इसमें तो आर है, यस परफेक्ट, मैटिया, ठीक है ना, कहने का मतलब है मुझे चाहिए मैटिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एम है, उसके बाद आपने अभी क्या फॉर्मेट बनाया, आपने बनाया एम परसेंटाइल टी परसेंटाइल ए, आपने ये बनाया, मतलब एम के बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो, फिर टी आना चाहिए बस, फिर कितने भी कैरेक्टर्स हो फिर ए आना चाहिए, है ना, यानी कि एम टी भी हो सकता है, क्योंकि जो परसेंटाइल है वो जीरो और मोर को डिफाइन करता है। हम्म? अब मैंने कहा कि मुझे एम के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए, उसके बाद में टी चाहिए, तो इस केस में पता है क्या बनेगा, देखो, मैंने कहा एम, ठीक है, अब मुझे क्योंकि एक ही कैरेक्टर चाहिए तो मैं परसेंटाइल तो लगा नहीं सकती, क्योंकि परसेंटाइल रिप्रेजेंट जीरो और मोर, ठीक है, तो इस केस में लगता है अंडरस्कोर, ठीक है। अब मुझे चाहिए टी, अब टी के बाद जितने मर्जी कैरेक्टर्स हो, बट एंड मुझे ए पे चाहिए, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, टेल मी, Yes, ma'am. ठीक है भाई। तो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करती हूँ, और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है, एंड अंडरस्कोर मीन्स 1,
ठीक है, मीन्स सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर. अंडरस्कोर मीन्स सिंगल कैरेक्टर्स. ठीक है, अंडरस्कोर. राइट. अब मुझे चाहिए सपोज जैसे ये अलविसा है और ये अलाना है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4. हाँ, मेरे को चाहिए कि स्टार्टिंग ए से हो. स्टार्ट्स विद ए. ओके. और ए के बाद ओनली 4 कैरेक्टर्स हो. ठीक है, 5 ना हो. परसेंटाइल लगाने से तो वो 5 6 7 8 बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी अपने अंदर ले लेगा. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है. लेकिन मुझे अगर ए के बाद 4 ही कैरेक्टर्स चाहिए तो आई विल बी राइटिंग 1 2 3 4. समझ में आ गया अब? हाँ. स्टार्ट विद ए एंड फॉलोड बाय 4 कैरेक्टर्स ओनली. ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म. अब मुझे चाहिए ही कोई ऐसा नाम जिसके केवल 3 कैरेक्टर्स हो. तो क्या करेंगे? सिंपल, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर. समझे? हम्म? किसी का नाम रॉय है, किसी का नाम जय है. हाँ, तो इस केस में मुझे चाहिए केवल उन्हीं उन्हीं एम्प्लॉयज का नाम, those who are having 3 characters in their name only. So in that case we can provide specific wildcard character, that is underscore. ठीक है, जितने चाहिए उतने लगा दो. ठीक है. Yes, ma'am. Something like write a query to display the employee details. ठीक है, of employee details for those employees whose name is having exactly 3 characters. ठीक है, तो उस केस के लिए उस केस के लिए क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक, नेम नहीं होगा, फर्स्ट नेम होगा, है ना? फर्स्ट नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर. है क्या? यस है ना? लेक्स, डेन, गूव एंड पैट. ठीक है भाई. Yes, ma'am. इसको इतना पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया अब. लाइक ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Clear, ma'am. ठीक है, अब जैसे इसी में ही ले लो. चलो बनाओ. आई वॉन्ट कि सिर्फ पैट आए. चलो अपने आप बनाओ. जो वाइल्ड कार्ड सेक्शन बनाओगे वो अपने आप बनाओ. आई वॉन्ट कि सिर्फ पैट आए. अंडरस्कोर का भी यूज करना है, परसेंटाइल का यूज नहीं करना. ठीक है, अंडरस्कोर का यूज करना है जिसमें सिर्फ पैट आए. सिर्फ सिंगल कोट्स वाला पार्ट लिखना, पूरी क्वेरी मत लिखना. वेरी गुड. हाँ बिल्कुल करेक्ट है. अभिषेक, प्रतीक, योगेंद्र, मनीष, दिवांशी. दिवांशी का तो आ गया था. दीपक, अच्छा आप तो फोन से कनेक्टेड हो. हम्म. पी कैपिटल होना चाहिए. दीपक, आपको भी है ये पॉइंट.
टी स्मॉल है, पी कैपिटल है, ठीक है ना, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना, अदरवाइज इट इज परफेक्ट। ठीक है, मैंने डिफरेंट सोचा था, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर टी, क्योंकि देखो किसी में भी एंडिंग टी से नहीं हो रही है ना, तो ये भी चल जाएगा। आपका भी सही है, ये भी सही है, पी अंडरस्कोर टी बिल्कुल परफेक्ट है। इवन देखो किसी का स्टार्टिंग भी पी से नहीं है, तो आप ये भी कर सकते थे, पी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, है ना, थोड़ा डिफरेंटली सोचा जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अदरवाइज आपका भी सही है। ठीक है। यस, ये भी सही है। ठीक है, कि बीच में सिर्फ ए लेके आ गए, क्योंकि बाकियों में भी ए नहीं है ना, परफेक्ट है। ठीक है, चलो नाउ हाउ टू सॉर्ट, हाउ टू सॉर्ट द डेटा on the basis of one or more than one column. ठीक है, हाउ टू सॉर्ट द डेटा, सॉर्टिंग की जरूरत क्यों है भाई? सपोज जैसे कि इसी में ही देख लो, सैलरी 17,000, 11,000, 2600 एंड 66,000, है ना, सॉर्ट तो नहीं है ना। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सपोज मुझे चाहिए। हम्म, मुझे हायर डेट के अकॉर्डिंग चाहिए कि कौन सबसे पहले अपॉइंट हुआ था, मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल पहले चाहिए, राइट। तो वो हम अगर सॉर्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा ना डेटा हमें। ठीक है, तो देयर वी रिक्वायर सॉर्टिंग। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स of those employees whose mm, whose salary is between 8,000 and 1,000, 10,000 कर देते हैं, या फिर चलो ठीक है। तो इसकी क्वेरी क्या बनेगी? हम्म, ठीक है, ये मुझे सारा डेटा दे देगा, लेकिन बिटवीन 8,000 है ना, तो कंडीशन में लगाते हैं, वेयर सैलरी बिटवीन 8,000 एंड 10,000। ठीक है, इसने मुझे वो सारी सैलरी ला के दी, हम्म, जिनकी सैलरी 8 से 10 के बीच में थी। ठीक है, बट ये सॉर्ट नहीं है। ठीक है, पर ये सॉर्ट नहीं है। एंड नाउ यू नीड टू अरेंज योर रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑफ सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लास्ट में? ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। देखो, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं थी। जब हमने ऑर्डर बाय क्लॉज के बिना इसको एग्जीक्यूट किया था, तो सैलरी इज नॉट सॉर्टेड। देखो, है ना, 9,082, 8,082, राइट। लेकिन जिस मोमेंट मैंने ऑर्डर बाय सैलरी को भी साथ में लिया, तो उसने मुझे सॉर्ट कर दिया बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इफ आई वांट इट टू बी प्रिंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? DESC. यस, आफ्टर सैलरी DESC। ये डिस्क्राइब नहीं है, ये डिसेंडिंग है, शॉर्ट फॉर्म। फुल भी लिख सकते हो, डिसेंडिंग भी लिख सकते हो पूरा। ठीक है ना, तो इन दैट केस वो पहले मुझे 10,000 दे रहा है, फिर 96, फिर उसका
rest of the part, descending order in short. ठीक है. Here by default, as if I'm not writing anything, DESC ASC नहीं लिख रहे ना, it is sorted in ASC ascending order. Yeah. Okay. Explicitly, if you need to sort it in descending order, then you have to write explicitly DESC. Okay. और descending, आप proper descending भी लिख सकते हो. ठीक है. So this is how you order it, sort it, not order it but sort it. ठीक है. अब क्योंकि सैलरी था तो न्यूमेरिकली उसने सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग. यही अगर मैंने नेम के थ्रू किया होता तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दे देता. ठीक है. AJMCL ऐसे से ना. ठीक है ना. तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दे देता. ठीक है. क्या लिखे वो आप करके देखना, वो आप करके देखना. ठीक है. गिविंग यू द क्वेश्चन, home assignment. Okay. Write a query to sort the data in descending order by name. ठीक है. by first name. ठीक है. करके देखना. नाउ ये तो हो गया वन कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग. ठीक है. व्हाट इफ, देखो एक चीज दिखाती हूँ. डिपार्टमेंट आईडी ले या जॉब आईडी ले, जॉब आईडी ले लेते हैं. जॉब आईडी. ठीक है. ध्यान से समझना, ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हो, ये सब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी ऐसे है ना. ये FI है, फाइनेंस IT प्रोग्रामर है ये. ठीक है. पर समथिंग लाइक, अब मुझे चाहिए कि सॉर्टिंग तो हो सैलरी की. ठीक है. सैलरी की सॉर्टिंग हो, लेकिन जॉब आईडी के रिस्पेक्ट में देखो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव दिस 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 दिस. ठीक है ना. अरे यार हट गया पूरा. ठीक है. ये सब, इन सब, ये तो सॉर्टेड नहीं है ना. देखो ये सब तो साथ में नहीं आ रहा. मैं चाहती हूँ सैलरी सॉर्ट हो विद रिस्पेक्ट टू जॉब आईडी. ठीक है. देखो ये 96 है, ये 88 है, ये 86 84 है. मतलब इन शॉर्ट ये सब साथ में है. देखो अभी आपको आउटपुट अलग से दिखेगा. हाँ, नहीं तो बिटवीन क्लॉज हटा देंगे, थोड़ा ज्यादा डेटा हो जाएगा. हम्म, तो क्या करेंगे हम, सिंपली मैम एंड यूज करेंगे. नहीं, कॉमा यूज करेंगे. जॉब अंडरस्कोर आईडी, बस इतना ही करना था. मैंने कहा ऑर्डर करो उसको सैलरी से. ठीक है ना. नहीं नहीं नहीं, जॉब आईडी से उसको सॉर्ट करो और जॉब आईडी के थ्रू सैलरी देखो, क्योंकि जॉब आईडी कॉमन है ना. हाँ, जो कॉमन होता है ना उसको पहले रखते हैं, और जॉब आईडी के थ्रू हमें सैलरी को सॉर्ट करना है. ठीक है ना. देखो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं. देखो सबसे पहली बात तो जॉब आईडी क्योंकि अल्फाबेटिकली थी तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया. हम्म, ABCD के तरीके से. और अभी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सब एक साथ आ गया, एंड दैट टू इन सॉर्टेड ऑर्डर. देखो पूरा सॉर्टेड है. ओके. ओके. राइट. अब देखो एक्चुअल में आपको सॉर्टिंग नहीं देना, सैलरी में सॉर्टिंग नहीं नजर आ रही. देखो ये 84 यहाँ है और अब 82 यहाँ है, 80 यहाँ है,
8000 यहाँ है। एक्चुअल में सैलरी में कोई सॉर्टिंग नहीं हुई, हुई है सैलरी में सॉर्टिंग हुई है, लेकिन जॉब आईडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया? तो ये पर्टिकुलर जो जॉब आईडी है, ये पूरी की पूरी, हम्म, ये सॉर्टेड है, ये वाली सैलरी सॉर्ट है इसकी। ठीक है, पर अगर आपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स देखोगे तो सॉर्टिंग नहीं है। देखो ये 8000 ऊपर है, 82 नीचे है। ठीक है ना, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके लिए क्वेरी क्या बनाए हम? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले the details according to job ID sort the salary। ठीक है, जब एक स्पेसिफिक कंडीशन दे देते हैं कि जॉब आईडी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो जॉब आईडी कॉमा सैलरी। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. गुड। Okay, I'll be going to provide you some practice question for your what assignment. Okay, so let's start functions. Okay, functions means predefined. Okay, कुछ प्री डिफाइंड होगा, इस बिटवीन का मीनिंग, इस एंड का मीनिंग, तभी तो ये चला। नहीं, बताओ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो उसकी इंटरनल चीजें देखेंगे। ठीक है, फंक्शन इज द piece of code that is the logic, okay, which has been provided to the uh, provided a name provided a name and is performing some specific task। ठीक है, in Oracle we have two types of function। Okay, one is single row functions and the second is multi row functions। Okay, okay, single row function and multi row function, space hyphen लगा देते हैं। ठीक है, अब सिंगल रो फंक्शन क्या होता है? Single row functions are those functions which will be performed individually for every record। ठीक है, जैसे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर किया था,
है ना, वो हर रो को इफेक्ट कर रहा था, राइट? आई गेटिंग माई पॉइंट? वो एक सिंगल रो फंक्शन था, अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करवा रहे थे हम, ठीक है, राइट? तो वो इंडिविजुअली एवरी रिकॉर्ड के साथ में काम करता है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड में, यस गाइस। तो अगर हम इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रो फंक्शंस की बात करें, सिंगल रो फंक्शंस, तो वी हैव कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, डेट फंक्शन, एंड जनरल फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये किस टाइप के सिंगल रो फंक्शंस है, ओके। अगर मैं स्पेसिफिकली अब लेके चले अलग अलग कैरेक्टर फंक्शन को, as if name defines, the function which works on character type data, okay, are called character functions, ऐसे लिख दो बस, ठीक है, आर कॉल्ड कैरेक्टर फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास में कैटेगराइजेशन है टू टाइप्स में, ठीक है। कैरेक्टर फंक्शंस की भी टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन है। वन इज केस कन्वर्जन फंक्शन एंड कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं केस कन्वर्जन की। नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा सेलेक्ट अपर, एक फंक्शन है तो पैरामीटर जाएगा, ठीक है। हम्म, अंकिता जैन, ठीक है, फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। तो देखो इसने फुल अपर केस दिया मुझे, मैंने तो स्मॉल दिया था ना, पर इसने मुझे फुल अपर दिया, राइट। सिमिलरली कैन बी राइट लोअर, हाँ, तो वो मुझे फुल लोअर केस दे देगा। अंडरस्टूड हाउ इट इज वर्किंग? तो ये दो फंक्शंस अपर एंड लोअर, ठीक है, अपर एंड लोअर। एक फंक्शन और होता है इनिट कैप, उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ये भी स्मॉल में रखा और ये भी स्मॉल में रखा, ठीक है ना, और इधर मैंने लिख दिया क्या, आई एन, इज देयर एनी हेल्प, इनिट कैप, यस, परफेक्ट, ठीक है। हम्म, इनिट कैप, ओके। तो ये क्या करेगा, इनिशियल्स का कैपिटल कर देगा, अंकिता का ए कैपिटल, जे का जे,
जैन का जे कैपिटल। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके। Yes, तो ma'am. आप देख रहे हो एक चीज, वैसे इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि ये सिंगल रो पे काम कर रहा है। कैसे देखो, क्या करें, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा अपर फर्स्ट नेम। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? फर्स्ट नेम जो एक्चुअल टेबल में होगा एलन, पर अपर लगाने से पूरा एलन कैपिटल हो गया, राइट? ये सिंगल सिंगल रो पे काम कर रहा है ना, हर रो को इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन है। ठीक है, देखो मल्टी रो फंक्शन में क्या होएगा, मैंने कहा सैलरी, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, कि मेरी पूरी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं वो कितने सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? तो सम सैलरी, उसमें क्या हुआ, मल्टीपल रोज यूज हुई लेकिन आउटपुट सिंगल आया। आर यू गेटिंग? लेकिन सिंगल रो फंक्शन में क्या हो रहा है, जितनी रोज इन्वॉल्व है उतने ही आउटपुट आ रहे हैं, राइट? जितनी रोज इन्वॉल्व हुई उतने ही आउटपुट है। लेकिन मल्टी रो में क्या होता है, आप इनपुट के टाइम पे तो मल्टीपल रोज लेते हैं, आपको सम निकालना है, आपको काउंट करना है कितने रिकॉर्ड्स हैं, आपको एवरेज निकालना है, आपको मिनिमम निकालना है। आर यू गेटिंग? आप कैलकुलेशन के लिए तो मल्टीपल रोज ले रहे हैं लेकिन आउटपुट में सिंगल आ रहा है, आउटपुट में सिंगल रो आ रही है। ठीक है, करेंगे वो आगे, करेंगे, बट अभी एक प्रॉपर एक बाउंड्री लाइन देने के लिए आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इधर अंकिता जैन जो था वो एक लिटरल था। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। यस, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो इसी के अंदर, लोअर एंड इट कैप। ठीक है, तो यहाँ उसने मुझे अपर केस दिया, ये लोअर केस दिया पूरा, और फिर ये इनिट कैप दिया, मतलब फर्स्ट कैपिटल। लग रहा है देखने में जैसे कि वो फर्स्ट नेम ही है, बट एक्चुअल में उसने इनिट कैप अप्लाई किया होगा। ठीक है, इंटरनली। अंडरस्टूड हाउ वी हैव डन दिस? Yes. It's Yes, quite ma'am. simple. It's quite simple. I need not to explain what is upper, what is lower, what is init cap. Yes, ma'am. ठीक है, now let's learn case manipulation.
द फर्स्ट फंक्शन इज concat. Yes, that pipe sign symbol. भाई पाइप साइन सिंबल कॉन्कैट करके दे रहा था ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, है ना? तो इंटरनली कुछ तो हो ही रहा होगा ना, राइट? तो वो कॉन्कैट फंक्शन से भी कर सकते हैं हम। कैसे? जैसे कि मैंने कहा मुझे कॉन्कैट करके देना है फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन करके, ठीक है? तो मैंने कहा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है? अब मुझे इनको कॉन्कैट करना है, तो मैंने कहा कॉन्कैट पैरेंथेसिस फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है? समझ में आया फॉर्मेट? कॉन्कैट टेक्स टू पैरामीटर्स, कॉन्कैट फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स, जिस जिसको भी उसको कॉन्कैट करना है, ठीक है? लाइक मैंने कहा सेलेक्ट कॉन्कैट, सिंगल कोट्स में तो आएगा, कॉमा सिंगल कोट्स, ठीक है ना? हेलो और मॉर्निंग, ठीक है? फ्रॉम ड्यूअल। तो मुझे इन दोनों को कॉन्कैट करना था, इसीलिए मैंने इसको कॉन्कैट फंक्शन के अंदर ऐसे कॉमा सेपरेटर से दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू दे दी। अब जो जो वैल्यूज वहां लिखी होंगी वो उसको कॉन्कैट करके दे देगा, ठीक है? हेलो मॉर्निंग एक ही कॉलम की वैल्यू है, ये एक ही कॉलम है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कॉन्कैट करने के लिए लेट मी रन दिस। तो देखो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे कॉन्कैट हो गया स्टीवन किंग, नीना कोचर, लेक्स दे हान। अब समझ रहे हो हाउ इट इज concatenate the two fields values also? इसी में ही अगर आप इस फर्स्ट नेम को सिंगल कोट्स में रख दोगे तो क्या होगा? बताना जरा, आउटपुट क्या आएगा? दीपक? यस दीपक, अगर मैंने इसको यस सिंगल मैम। कोट्स में लिख दिया तो क्या होगा? मैम ये नहीं आएगा। आएगा तो सही, कुछ तो आएगा। अब क्या आएगा वो बताओ? ये वाला जो कॉलम है, थर्ड कॉलम है, उसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? नंबर में आता है हम्म मैम, नंबर और वो बताया आपने। नहीं, कोई बता पाएगा कि क्या आउटपुट आएगा? नल। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। एग्जैक्ट मतलब फर्स्ट नेम FIRST नेम और लास्ट नेम जो यस आपने कोड में लिखा है वो आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये सिंगल कोट्स में लिखने से लिटरल बन गया। जिस तरीके से ये हेलो मॉर्निंग एज इट इज प्रिंट हुआ ना, अब ये हाँ मुझे मैम, हर हाँ। कॉलम की वैल्यू को फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देगा। देखो, हाँ हाँ, फर्स्ट नेम याद लास्ट है। नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, समझे? जी मैम। ठीक है, तो इसलिए सिंगल कोट्स नहीं लगाना है। जब भी हमें वैल्यूज यूज करनी है, whenever we use values, so we should not write single quote. सिंगल कोट हमें वहीं लगाना है जहां पे लिटरल है। Okay, if I want to use the value of this column, then we have to use without single quote, ठीक है? मैम अगर स्पेस चाहिए बीच में तो एक और कोमा लगाएंगे। नहीं, कॉन्कैट के अंदर केवल 2 ही पैरामीटर्स होते हैं, इस फंक्शन के थ्रू आप स्पेस नहीं दे सकते। ओके। ओके, हर फंक्शन की एक हर हर मेथड की ना एक फॉर्मेशन होती है, ये पैरामीटर होते हैं, सिग्नेचर, इसे हम सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज ओके। डिफाइंड कि कॉन्कैट could only takes 2 parameters, ठीक है? It is used to concatenate two strings, ठीक है? Two strings. This function takes 2 parameters. Okay, takes 2 parameters. तो ये 1 को 2 से कॉन्कैट कर देता है, ठीक है? अच्छा एक बात तो मुझे सपोज करना है कि ये जो अभी ये वाली क्वेरी है, जैसे ये
ये स्टीवन किंग। मुझे इस पूरे को अपर केस में लिखना है, कैसे करोगे? मैम अपर बिफोर कॉन्कैट। यस, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, इम्पोर्टेंट भी है। इन अबव क्वेरी what if I need to print the fourth column in upper case, ठीक है ना? तो इस केस के लिए क्या करेंगे, इस क्वेरी में यहाँ पे अपर, और इस अपर के अंदर एक ही पैरामीटर जाता है ना, तो इस पूरे को इस अपर में ले लिया, समझे? यानी कि अब जो भी इस कॉन्कैट से आएगा सबसे पहले इनर इनर मेथड सॉल्व होगा, ठीक है? यही चीज तो मैथ्स में भी होती है, राइट? सबसे पहले इनर मोस्ट शेल ब्रेक होगा, फिर वो बाहर जाएगा, तो कॉन्कैट होएगा सबसे पहले, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैट हो जाएगा। कॉन्कैट होने के बाद में हमने उसको अपर केस में ट्रांसफर कर दिया, तो अब पूरा नेम कैपिटल्स में आ रहा है, ठीक है? मैम हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से पहले भी अपर यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, वो भी कर सकते हो कि फर्स्ट नेम को अलग से अपर केस में ट्रांसफर किया, लास्ट नेम को अलग से अपर केस में ट्रांसफर किया, फिर उसको कॉन्कैट किया। यस, यू कैन डू इट, ओके। ठीक है? इन अबव क्वेरी we use nested mm, या फिर नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। यस, परफेक्ट, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज किया है, इस कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस कहते हैं। इट विल इवैल्यूएट द concatenation of first and last name, then uh, it will make it capital by using upper upper function, ठीक है? समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है? एक सेकेंड गाइस, हाँ। अरे कृष्णा जी कैसे हो? एकदम बढ़िया। वैक्सीन लगाया?
हाँ जी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन Yes, ma'am. कि किस तरीके से उसने नेस्टिंग यूज करी है इसमें। ठीक है। ठीक है ना। चलो ऑल दो इसमें तो अभी और बहुत फंक्शंस हैं। सब एसटीआर है। सब एसटीआर फंक्शन, सब एसटीआर है। फिर एक लेंथ फंक्शन भी है, एच लेंथ, आई एन एस टी आर है। बहुत है अभी तो। हम्म, इसको हम कल करें या अभी करें, बताओ आप। मैम कल से करेंगे कंटिन्यू। कल कर लेंगे। हाँ मैम, कल कर लेंगे। हम्म। ठीक है ना। तो फिर करते हैं काम यही कि इसको हम कल से कर लेते हैं। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द असाइनमेंट। ओके ठीक है मैम। ना। उसको जरूर करना। काफी हेल्प मिलेगी उससे आपको। ठीक है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आप। Uh, Ankita, I appreciate like if you can provide the link as well so that we can download and do some hands-on. डेफिनेटली, डेफिनेटली। Yeah. आई So, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द लिंक और एक कल लाइव, राइट। so you will be sharing it by email or like how do we come to know? वेट, हाँ, लेट मी प्रोवाइड यू राइट नाउ ओनली। Okay. In the chat box I have provided this. Yeah, got it. Okay, there you have to create your account. Okay, then start Okay. coding. Okay. Okay, so when you sign in, so start coding, so you will definitely uh, So first, do we need to create a kind of database table over there, or it's like predefined tables and no, every the structure which we have worked abhi tak na, it's there. same structure? Same Okay. structure will be there. Steven, 100, employee ID, सब कुछ same है. ठीक है. Okay, you will get every data there in the HR user. Okay, ठीक. just you Okay. need to provide select star from employees. Instead of employees, you have to write HR dot employees. Okay, the difference is this only, that you have to refer the table name by the username also. That is uh, HR dot employees. Okay, Okay. Thank you. then you would be able to work this Yes. query. Okay, instead of select star from employees, Okay. you And should. one more thing, like if we want to refer this particular recording, so is Hmm. there any like shared location? Yes, I'll be going to share the drive part. Okay. Okay. आपने मे बी नोटिस नहीं किया, बट आई हैव save all the code in the drive itself simultaneously. Okay. Okay, so there you will get the recording and the notes as well. Hmm. Okay. Okay, anything else? Anyone? No. No. Okay, fair enough. So meet you tomorrow at 9:30.
Okay. Sure. Thank you. Done. Bye. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you for Bye. connecting. Thank you. Have a good day, ma'am. Bye. Same to you. Same to you. Okay. Thank you, ma'am.